Hello students, today's topic is opportunity cost. The opportunity cost of goods produced is the cost of other good that is foregone for production of the good in concern. In case of production of two goods, for example, clothes and wheat, if resources, land, labor and capital are employed in production of clothes, then the production of wheat sacrificed is अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर एक का प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरे का कमोडिटी जो होती है उसका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ करना पड़ता है, इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सेकंड वन इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, the resources are shifted from production of one commodity to the production of other commodity. To increase the production of one commodity, the production of other commodity has to be decreased. The quantity sacrificed of second commodity is the marginal opportunity cost of the first commodity. Thus, marginal opportunity cost is defined as the amount of commodity that needs to be given up in order to increase the production of the other commodity by 1 unit. For instance, if some resources are shifted from the production of cloth to the production of wheat, assume that by shifting resources to the production of wheat, the production of cloth decreases by 200 meter. Thus, the opportunity cost of additional unit of wheat is 200 units of cloth. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एक कोई एडिशनल यूनिट हमें प्रोड्यूस करने के लिए हम सेकंड कमोडिटी की जो यूनिट है वो डिक्रीज़ करते हैं, तो उसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एवरी इकोनॉमी, वेदर इट इज़ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, faces three central problems which are as follows: what to produce, how to produce, from whom to produce. First one is what to produce. The first central problem of an economy is to decide what goods are to be produced. Resources are scarce in relation to human wants. All the goods cannot be produced. Allocation of resources and the consequent problem of choice requires what is to be produced. The solution to this problem depends on the nature of the economy. The PPC means production prosperity curve is used to solve this problem. इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर गुड्स, हम दो गुड्स लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। मान लीजिए हमें कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है कि मैंने किसी चीज़ को, किसी कमोडिटी को परचेज़ किया है किसी का गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, मान लीजिए मशीनरी, ठीक है। तो हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करें। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोड्यूसर गुड्स की सप्लाई डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अगर प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सेंट्रल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करें। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मीन हाउ टू ऑर्गेनाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दे लेट two types of techniques, labor intensive and capital intensive, can be used. An economy must decide as to which technique is to be used in a given industry so as to obtain maximum production. Selection of labor intensive or capital intensive technique depends on type of economy. Production can be done either using labor intensive technique or quantity of capital इंटेंसिव टेक्निक। डिटरमाइन हाउ टू प्रोड्यूस, इसका मतलब ये है कि अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हम लेबर हमारा बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा,
तो हम मशीनों पर डिपेंड ज़्यादा हो जाएंगे। तो मशीन के लिए सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए सिर्फ एक ही ह्यूमन की ज़रूरत रहेगी, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन मैक्सिमम तो हो जाएगा हमारा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम रहती है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाए। थर्ड आती है हमारी फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। देखिए, पहली प्रॉब्लम थी व्हाट, हमने क्या प्रोडक्शन किया, दूसरी हमने कैसे प्रोडक्शन किया। अब जब हमने प्रोडक्शन कर लिया तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हम किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें हमारे 2 पॉइंट्स है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे, इसका मतलब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करेंगे, तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जो रिच पर्सन्स हैं, रिच पर्सन्स तो उनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो तो परचेज़ कर लेंगे, लेकिन जो पुअर पर्सन्स हैं वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया तो रिच तो परचेज़ कर सकेंगे लेकिन पुअर परचेज़ नहीं कर सकेंगे। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वुमेन जितना वर्क कर रहा है उसको उतना ही मिले। अगर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से यूज़ करेंगे तो फिर रिच पर्सन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो प्रॉब्लम यही आती है कि किसके लिए प्रोडक्शन फ्रॉम होम टू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का अपनाया जाए या फिर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को अपनाया जाए। तो ये हमारे 3 प्रॉब्लम थी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इस चैप्टर में सबसे पहले इकोनॉमी की डेफिनेशन, उसके बाद इकोनॉमिक की क्या एजम्पशन थी, इकोनॉमिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, पीपीसी कर्व का शिफ्टिंग पढ़ी और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू, गुड बाय।